हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आपको डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन इस चैप्टर का सबसे लास्ट कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं। ये टॉपिक काफी छोटा सा है। अगर आप ये देखो कि एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में इतना छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जहां पे जॉन्डिस सिर्फ एक ही लाइन में डिस्क्राइब किया हुआ है, डायरिया 2 लाइन में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इतना कम कंटेंट नहीं, हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, actually when you talk about inflammation of a small intestine or inflammation of bowel, जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन या तो लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, तो वो स्वेलिंग मोस्ट प्रोबेबली आइदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आइदर वायरल इन्फेक्शन होता है, या तो टैप वर्म, हुक वर्म, राउंड वर्म, पिन वर्म, इनके थ्रू होता है। लेकिन कुछ ऐसे इंटरनल प्रॉब्लम्स है जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में काउंट किए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जॉन्डिस, वॉमिटिंग, नोशिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, generally when our small intestine and large intestine undergo swelling, we called it as an inflammation of bowel. Yes, inflammation of bowel, inflammation of small intestine and large intestine means swelling in the small intestine and large intestine is called inflammation in the bowel. So generally cause of swelling of small intestine and large intestine is either due to the infection of a bacteria, either infection of virus, either infection by worms, might be tapeworm, hookworm, pinworm, roundworm, etc., etc. But there are some internal problems are there which are related to digestive disorder that we are going to discuss in this lecture. So in this lecture we are going to discuss about you can say diarrhea. We are going to discuss about indigestion, constipation, vomiting, jaundice. Yes, so we will discuss all these things. Let's start. First of all, I am going to tell you jaundice, yes, which is given first in our CBSE book. So let's start. What is jaundice? In our CBSE, it is given only in the one line. But if I tell you in one line, I'm not that much damn sure that if they wanted to ask the MCQ from the jaundice, what they are going to ask you. They will not ask you in the jaundice what is the color of our skin and eye. Everyone knows. Yes, in a jaundice, basically the color of our eye becomes a yellow. Our color of skin becomes a yellow. Why it is so? That I'm going to tell you. Yes, see. तो jaundice क्या होता है? Jaundice is an abnormal condition of our hemoglobin. It's abnormal working of hemoglobin. Basically, you know what happened? Hemoglobin found inside RBC. Hemoglobin is a one protein found inside the RBC, and hemoglobin is made by alpha and beta chain. Alpha and beta chain. Beta chain is made by bilirubin protein, and alpha chain has another protein. We are not interested in that because we are going to discuss about jaundice, and jaundice is related to bilirubin protein. तो होता क्या है, हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन दो अलग अलग चेन से बना होता है, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो जब ये अल्फा और बीटा, ये दोनों आयरन से कनेक्टेड होते हैं। जब अल्फा और ये बीटा दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब ये जो बीटा चेन है, जो बिलीरुबिन नाम के प्रोटीन से बनी हुई है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बिलीरुबिन इज वाटर insoluble and fat soluble.
and color of bilirubin is येलो। तो आप ये देखिए, जब ये अल्फा और बीटा दोनों अलग हो जाते हैं तो बीटा होता है वो होता है बिलीरुबिन प्रोटीन, और बिलीरुबिन प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल है, मतलब पानी में प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होगा, लेकिन ये फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल होने के कारण क्या ये स्किन में चला जाएगा और इसका कलर है येलो। तो अगर ये स्किन में चला जाएगा तो कलर कौन सा हो जाएगा स्किन का? येलो। आइस का कलर कौन सा हो जाएगा? येलो। तो ये होता है जॉन्डिस। यस, जॉन्डिस में बेसिकली डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जॉन्डिस में हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट मतलब मिनरल, विटामिन ये काफी कम हो जाते हैं, तो डॉक्टर हमें इलेक्ट्रोलाइट देते हैं सलाइन के थ्रू और रेस्टिंग करने को कहते हैं, बिकॉज इट इज नॉट इन्फेक्शन ड्यू टू द बैक्टीरिया और वायरस। Are you getting what my point is? So in a jaundice, doctors are recommending or suggesting patient to take a bed rest and take a saline take a electrolyte through the saline. So when they get proper bed rest and when they feel their body by use of electrolyte, then everything becomes normal. Yes. So this is about jaundice. Second, I'm going to tell you diarrhea. Now, what is meant by diarrhea? Diarrhea is a one condition of a small intestine, sometimes also large intestine, but it is mainly of small intestine. Diarrhea is a condition in which our body loses too much of electrolyte. हमारी बॉडी में डायरिया में काफी सारे मिनरल्स, काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट हो जाती है हमारी बॉडी। मतलब डायरिया में होता क्या है, ऑलमोस्ट हमारा जो लेट्रिन है, हमारा जो फीकल मैटर है, हमारा जो फीसेस है या तो स्टूल है, ये चारों एक ही चीज है। लेट्रिन, फीकल मैटर, वेस्ट मटेरियल, फीसेस और स्टूल, ये चारों पांचों एक ही चीज के नाम है, मतलब हमारा मल, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट डायरिया में लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। इन अ डायरिया, yesterday before in a lecture I taught you that the function of a large intestine is to absorb the water before defecation। मतलब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं, स्पेशली ये सिग्मोइड, कोलोन और रेक्टम, ये क्या करते हैं, वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने से पहले, मतलब इजेशन या तो डिफिकेशन प्रोसेस करने से पहले वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन ने ये वाला फंक्शन प्रॉपरली नहीं किया तो वाटर और वेस्ट मटेरियल दोनों मिक्स हो जाएंगे, और वेस्ट मटेरियल कौन से फॉर्म में हो जाएगा, सॉलिड की जगह पर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और यही डायरिया, डिसेंट्री में हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब मैं आपको ये बता दूं, डायरिया जनरली दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होता है। एक तो बैक्टीरिया से होता है जिसे हम कहते हैं बेसिलस बैक्टीरिया, और दूसरा ये अमीबा से भी होता है जिसे हम कहते हैं अमीबोइक डिसेंट्री और बेसिलरी डिसेंट्री। डिसेंट्री डायरिया एक ही चीज है, एक जैसी चीजें होती है। सो रिमेंबर इन दिस देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड देखो एनसीईआरटी में जितना दिया है ना, मैं उससे काफी ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन मैं इतना भी डिटेल में नहीं बता रहा हूं जो कि वैल्यूएबल ही ना हो। बिकॉज अगर इस चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आएंगे तो 2 एमसीक्यू के लिए तो काफी अच्छे पॉइंट हमने देख लिए, लाइक फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यस, मींस मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनल, ये सब पॉइंट हमने देखे, उसमें काफी चीजें बताई गई है। तो डायरिया में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड stool turn into liquid state। मतलब हमारा स्टूल, मतलब हमारा वेस्ट मटेरियल जो है वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली डायरिया में ये 2 चीजें होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ।
Now our third topic is indigestion. Yes, and then we will discuss about constipation, and then we will discuss about vomiting. Vomiting. Yes, so what is meant by indigestion? indigestion आप नाम से ही समझ जा रहे हो. यस, indigestion का मतलब होता है डाइजेशन न होना. indigestion का मतलब होता है डाइजेशन न होना. अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एबनॉर्मल वर्किंग कर रही है, या तो हम काफी स्पाइसी फूड खाते हैं, या तो हम काफी फैट वाले फूड खाते हैं जो डाइजेस्ट इजीली ना हो सके, लाइक नॉन वेज, या तो हम काफी टाइट क्लोथ पहनते हैं. तो ये कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, एक्चुअली स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, ये प्रॉपरली फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और हमें हमेशा ऐसे ही फील होता है कि हमारा पेट ऐसे ही भरा हुआ है. तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इंडाइजेशन. इंडाइजेशन इज एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ अ स्टमक एंड स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन. When our small intestine do not work properly, food do not undergo proper digestion, and the main reasons of indigestions are either you are having a too much fatty food material like oily food material, fats, non-veg, either you are having a too much spicy food material, either your enzymes of intestine are not working properly, either you are having anxiety, either you are having laziness, or either you are wearing very tight cloth. Some reasons are there. After having a food, you are directly laying on the sofa or bed. That is a bad habit. After eating a food material, if you walk around 500 meter, 3 to 400, 500 meter, then it becomes a very good. Yes, it's just only you have to take a 4 to 500 steps walking. Then your indigestion problem will becomes automatically solved. Yes. Even though indigestion can be easily solved by using of dietary fibers. If you mix too much of a greenery in your, you can say food material like a salad. So these food contain too much of a fibers. Like if you talk about beetroot, if you talk about you can say number of vegetables like tomatoes, carrots are there. They are containing lots of a fiber, and this fiber can help you in treating indigestion like problem. Now what is meant by constipation? Constipation का मतलब अगर हम देखें तो ये काफी एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन लोग इसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानते क्योंकि इसमें ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक एक एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती. इसमें सिंपली क्या होता है, हमारे जो वेस्ट मटेरियल की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है. What happen in constipation? Our waste material of our body becomes stick to the wall of a large intestine and they do not comes out in a proper way. So there is a decrease in the waste material quantity. There is decrease in the quantity of a waste material. That is why it is called constipation. हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल को स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है वहां पे, और वेस्ट मटेरियल इजीली बाहर नहीं आ पाता. इसके लिए उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन. और जनरली डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए कि आपको डाइटरी फाइबर्स जिस फूड में ज़्यादा हो वो चीज़ें आपको ज़्यादा खानी चाहिए. और अगर आप डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी. इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड इफ दे हैव इंडाइजेशन लाइक प्रॉब्लम देन दिस बिकम्स टू मच प्रॉब्लमेटिक. अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और इंडाइजेशन भी है तो ये दोनों काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो ऑलरेडी है, वेस्ट मटेरियल की क्वांटिटी ऑलरेडी कम बाहर निकल रही है और उसके ऊपर से भी फूड अगर इंडाइजेस्ट होने लगा तो ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. वॉमिटिंग, उल्टी आना मतलब वॉमिटिंग होना. ठीक है, हमें जो उल्टी आती है एक्चुअली वॉमिटिंग इज नथिंग बट द यू कैन से food material coming from stomach back to the mouth. Food material from stomach coming back to the mouth and it is ejecting through the mouth.
अगर हमारा फूड मटेरियल स्टमक से ऊपर आके माउथ से बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वोमिटिंग। और वोमिटिंग कब होती है? अगर हमें नोशिया हो रहा है तो वोमिटिंग होती है। नोशिया मीन्स फीलिंग ऑफ वोमिटिंग इज कॉल्ड नोशिया। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नोशिया का बेसिक मतलब नहीं पता होता। तो आप अगर कोई चीज नहीं जानते हो तो सीधा सीधा क्या कीजिए, उस वर्ड को गूगल में डालिए और उसके पीछे लिख लीजिए मीन्स, तो आपको डायरेक्टली ऐसा ही आ जाएगा। तो नोशिया अगर आप देखो गूगल में, देखो विकिपीडिया में, कहीं पे भी देखो, किसी डॉक्टर से पूछो, नोशिया का मतलब होता है उल्टी आने का फीलिंग होना। यस, हमेशा महसूस होता है कि हमें अभी उल्टी आ जाएगी। Yes, we feel that now we will get vomit. So that's called nausea. Nausea always result into vomiting. If you do not treat properly, then nausea result into vomiting. Nausea एक है ना vomiting की feeling होती है, और अगर हम vomiting की feeling होती है तो कुछ देर में vomiting हो जाती है. So that's called nausea and that's called vomiting. Vomiting के जो reasons होते हैं वो कुछ indigestion ही होते हैं, indigestion के कारण, लेकिन vomiting का main reason होता है hyper acidity. When you are having too much of acidic food material, yes, and your area like breathing area, your area like esophagus and trachea area is having too much of acidity due to hyperacidity, then you may be having a feeling of nausea, feeling of vomiting, and if nausea is there then you will have a vomiting. तो ये कुछ चीजें आपस में मैच करती है। तो ये 5 डिसऑर्डर हमें एनसीईआरटी में दिए हुए। पहला हमने देखा जॉन्डिस, उसके बाद ये देखे थे लेकिन मैंने सीक्वेंसली मैच नहीं किया था, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग एंड डायरिया एंड जॉन्डिस, ये 5 दिए हुए थे। यस, मैं आपको और 2 चीजें बता देता हूं। Kwashiorkor and marasmus. These are also digestive disorder. Now, what is kwashiorkor? Kwashiorkor is nothing but disorders due to the deficiency of protein in diet. Yes, अगर हमारे डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को, उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं क्वाशियोरकर। और ये क्वाशियोरकर मतलब 1 से 2 साल के बच्चों में, मतलब 2 साल के बच्चों तक होता है। इन्फेंट से लेकर, मतलब बर्थ से लेकर 2 साल तक के बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जनरली पहले के टाइम पे अगर आप देखो, कुछ मतलब आज से 25-30 साल पहले, तो वो पीरियड में अब अगर आप अपने पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से पूछो तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम में माँ अपने बेटे को 2-2 साल तक दूध पिलाती थी। और माँ के दूध में जो प्रोटीन होता है वो कौन से भी कंपनी के प्रोटीन में, कौन से भी कंपनी के मिल्क में या तो गाय और भैंस में से इतना प्रोटीन नहीं मिलता। तो वो जो माँ का प्रोटीन होता है वो बच्चे के लिए काफ़ी फायदेकारक होता है। लेकिन आजकल वो जो माँ का मिल्क पिलाने की फीडिंग की प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 6 महीने तक आ चली है, और कहीं कहीं पे भी तो उससे भी कम हो गई है। तो उस प्रोटीन में जितनी ताकत होती है वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रोटीन नहीं मिलता है, अगर मदर जल्दी फीडिंग छोड़ देती है बच्चे की, तो उस कारण क्वाशियोरकर जैसी प्रॉब्लम्स आती है। जनरली प्रीवियसली मदर यूज्ड टू फीड अ बेबी अराउंड 2 years, but nowadays it is being reduced up to the 6 month or less than 6 months also, and therefore children are suffering from protein deficiency and they can lead to the kwashiorkor like problem. Even though protein food material for the children's maybe the mushroom, maybe the soybean, maybe the good milk which contain protein, and some other food material which contain protein. These are the material which cannot be eaten by the small child. Yes, therefore small child has to be depend on mother's milk, which is a reliable protein, and cow protein also, milk protein, cow protein also, buffalo protein also. Marasmus is due to deficiency of complete
डाइट हमारे पूरे फूड मटेरियल में, मतलब एक समझ लो कि खाने की एक प्लेट में जितनी भी चीजें होते हैं उन सब में से क्या क्या मिलता है, अगर वो सभी चीजें डाइट में कमी, लाइक इफ यू आर हैविंग अ फूड मटेरियल विच इज लैक ऑफ अ प्रोटीन, विच इज लैक ऑफ मिनरल, विच इज लैक ऑफ अ फैट, एक्चुअली फैट और कार्बोहाइड्रेट तो कोई भी फूड में मिल ही जाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये चीजें कमी होती। इफ यू आर हैविंग अ फूड मटेरियल विच इज हैविंग लैक ऑफ अ विटामिन, lack of a mineral and lack of a protein essentially, then you are going to have a problems like a marasmus, and marasmus problem is nearby same like a kwashiorkor, because in kwashiorkor there is deficiency of protein, in marasmus there is deficiency of complete diet. So what you can do, you can treat this problem by use of a protein content in the food, and this is also up to the 2 years of a baby. ये कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर थे जो हमने हमारे पॉइंट में देखे। एनसीईआरटी में काफी शॉर्ट में दिया हुआ था, अगर एनसीईआरटी के लेवल से जाएं तो 5 मिनट में लेक्चर कंप्लीट हो जाए, बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखो पीछे डिसऑर्डर में तो 1122 लाइन में सब एक्सप्लेन किया गया हुआ। सो थैंक यू सो मच, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आई हैव टॉट यू अराउंड 7 थिंग which was started by jaundice, then diarrhea, then indigestion, constipation, vomiting, kwashiorkor, marasmus. Thank you so much.